Hello student, welcome to Explore Learning video lecture series. So yesterday we have solved some numericals. Okay, so but in the second numericals I had made a small mistake. It is about maybe my personal mistake. That means I have not multiplied or something decimal point is actually mistyped in calculator. Okay, so you can see here I have covered this much. Okay, up to this it is correct. Now that means what, 4 into q square. Okay, so just read this numerical, you will come to know okay what is the mistake. Okay, so 9 into 4 and then you have to multiply 6.5, that is, and 6.5 because it is square, Okay, so I will show you the multiplication. It becomes what I have written here yesterday, 367.25. it is wrong actually. Okay, so now if you multiply this 9 into 4 into 6.5 into 6.5. okay, so it should be 1521. It should be what, 1521. okay, so instead of this you can write it down here 1521. so 1521 point. Okay, so this much only. Okay, so this is the final answer. So again I will write it down here 15 okay, so okay, now this 1521 divided by 625. now so divided by 625, so you will get 2.43. okay, so I will write it down here 2.43, and this minus 4 will move up, it become plus 4, and this minus 14 plus 9 you will get minus, so minus 5 plus 4 you will get what, minus 1. okay, so here it becomes what, 2.43 into 10 to the power of minus 1. correct. So your final answer is 0.24 Newton. So this is what answer. Okay, so make it correct. Okay, so this was the only small mistake. Okay, it sometimes happens due to the what, negligence or something. Okay, we are also human being. गलतियाँ तो सबसे होती रहती है. Okay, अगर गलती ना करे तो फिर आपको भगवान कहाँ जाएगा. Okay, so the next is what, the vector form, which is yesterday I told you that in this video I will explain it. Okay, so why this vector form is there? Because force is a vector quantity. And whenever one charge is applying the force on the another charge. Okay, suppose these are the what, the two charges. Okay, and already told you that whenever, suppose this charge and this charge, they are placed at distance r, so this charge will, if they both are positive, this charge will repel this charge in this direction, because along the line joining. Okay, and this charge will repel this charge along this direction. Okay, now if suppose this is positive and this is negative, so what will be there, force of attraction will be there. Okay, so this charge will attract this charge in this direction, correct, along the line joining. Okay, or this charge will attract this charge along this direction. Okay, so direction is here. Okay, so direction is what, here. Okay, so whenever the physical quantity is associated with the direction, that is known as what, a vector quantity. Now suppose these are the what, the two charges, so I will mention here. Okay, so consider these are the two charges, so I will make it here, this is q1 and this is q2. Okay, now suppose both are separated at a distance of r. Okay, so what is the distance between them? The distance between them is what, r. Okay, now I will consider both are positive. Both are positive. So what will happen now, if you consider this charge, both are positive means what, there is a repulsion, there is no attraction. That means this charge will repel this charge in this direction, along the what, line joining. Everything is happen along the line joining. So this is what, the line joining. So this charge push this charge in this direction. Okay, so this is what, nothing but the F. Okay, so this is force on which charge, 2 charge. So force on 2 charge due to what, first. So this is what, the you have to write it down. Okay, and this is what, the direction. Okay, now this charge will apply the force on this charge similarly. Okay, so this charge will push this charge in this direction, so it is nothing but what, F on which charge, first charge, due to what, second charge. So this is what, the equation. Okay, now suppose you can have this direction also. Okay, so if you are considering this direction, okay, from q1 to q2, okay, you have one unit vector. Okay, so this unit vector will point as r1 to 2. This is what, unit vector, and this is what, another unit vector in this direction, that is r
2 1. Okay, so what is the meaning of this unit vector? That is, this vector is pointing, and this value is what? Unit. Okay, so this vector is pointing from 2 to 1, that's why it is 2 1, and this unit vector is what? Pointing in the direction of what? From 1 to 2, that's why it becomes what? 1 to 2. Okay, so I will write it down here. So let a charge, let a 2 charge, let a 2 charges q1 and q2 are separated at distance r, separated at distance r. Okay, so now, so I will write down here each notation. So this is what? F12. So this meaning is what? Force on charge 1, force on charge, you can say q1 due to q2, due to q2. Okay, similarly 2 1, it is nothing but the what? Force on charge, force on charge q2 due to q1, due to what? q1. Okay, so make it little bit highlight. Okay, so understood this notation, and this is what? R12 unit vector. Okay, so this, what is the meaning of this? Unit vector, and unit vector we take for the what? To represent the direction. Unit vector pointing from q1 to q2, from q1 to q2. Okay, and similarly R21 unit vector pointing from q2 to q1. Okay, so now we know that. Okay, so you can write it down here. Therefore Coulomb's law. Okay, so now I will write it down the Coulomb's law in vector form. So it becomes what? F12, it is nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2. Okay, F12 q1 q2 divided by what? R square. Okay, so F12 divided by, correct, it becomes what? R square. Okay, and this is what? Unit vector R12, correct. Okay, that is the direction, that is what? A direction. Okay, similarly F21, the force on the 2 charge due to 1. Okay, so it is what? 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square multiplied by what? R21, a unit vector, correct. Okay, so if in examination if they ask write down the vector form of Coulomb's law, so you can just don't write everything. Only मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है. आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's लॉ, ठीक है. 1 मार्क्स के लिए पूछा या 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे, आपको सिर्फ ये 2 इक्वेशन लिखने हैं, याद रखो, ठीक है. डोंट राइट एवरीथिंग. ओके, समझ में आ गया? Write down the vector form of Coulomb's law, only write down these 2 equation, not all the things. Okay, remember. Okay, so next, अब थोड़ा सा और भी उसको explain करेंगे. Okay, so we know that. Okay, so we can write it down as F12. Okay, F12 is nothing but the what? Magnitude of F12. Okay, so ये देखो अभी, ठीक है, ये जो फोर्स है, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है. हाँ, लेकिन इसका डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये R21 रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज बोथ आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन. सिमिलरली F21 इट इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. ओके, उसके साथ कौन सा यूनिट वेक्टर है? R12 है, ठीक है. द फोर्स 21 है लेकिन R12 है, ठीक है. तो इसका जो यूनिट वेक्टर है ये इस फोर्स के साथ है, ये जो यूनिट वेक्टर है ये इस फोर्स के साथ है, करेक्ट. ओके, सो वेन एवर द वेक्टर is equal to what? We represent what? Magnitude and the unit vector. So unit vector is equal to what? R21. Unit vector is what? R21. Okay, so ये जो F21 है इसके साइड में कौन है? R21 ही है ना, करेक्ट. इसका भी डायरेक्शन यही है, इसका भी डायरेक्शन यही, ठीक है. हाँ, तो ये इसको मैं ऐसे लिखता हूँ F12, करेक्ट. ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? दैट इज 1 अपॉन 4 pi epsilon naught, okay, into q1 q2 divided by what? R square
and then you have this is the actually magnitude, this is actually magnitude, so it becomes what, r21, r21. Okay, so similarly, okay, but okay, so similarly f21 is equal to what? Okay, so magnitude of f21, okay, so f21 ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ओके, इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग है? r12 है, करेक्ट, r12 है, सो इट बिकम्स व्हाट, r12. Okay, so now if I write it down here, f21 is equal to what, 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 मैग्नीट्यूड है r स्क्वायर, ओके, सो मल्टीप्लाई बाय व्हाट, r12 यूनिट वेक्टर, ठीक है, बट r12 इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, माइनस r21 यूनिट वेक्टर, ठीक है, कैसे, ये देखो r12 इस डायरेक्शन में है, r21 इस डायरेक्शन में, मतलब बोथ आर सिमिलर बट अपोजिट इन ईच अदर, अपोजिट इन ईच अदर, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, ठीक है, तो अपोजिट रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं, नेगेटिव से, इट इज व्हाट, -1. ओके, सो नाउ दैट मीन्स व्हाट, इंस्टेड ऑफ दिस वन r12, okay, r12 you can place it what, r21, correct, you can place it what, r21. Okay, so or you can say, you can take this also, you can take this also, so I will take this equation here, so it becomes what, f12 is equal to what, 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by what, r square, okay, and multiply by, okay, what is r21, r21 is nothing but the what, negative of r12, negative of, you can say r12, negative of r12, correct. Okay, so f12 is equal to what, 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square r12, okay, and I will put this negative here. Okay, now look at this bracket, look at this bracket, okay, this bracket is exactly the same this one, that means f21, correct. Okay, that means what, f12 is equal to what, minus f21, minus f21, okay, and this is what, Newton's third law, that means what, Coulomb's law ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या है, ये चार्ज इस पे फोर्स इस तरफ लगा रहा है, ये चार्ज इस पे फोर्स इस तरफ लगा रहा है, ठीक है। ओके, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल बट अपोजिट। ओके, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, द टू फोर्सेस acting on a body, okay, that is equal and opposite reactions, opposite reaction, that means for every action there is what, equal and opposite reaction, okay. So this is what the proof of the Newton's third law, that is F12 is exactly opposite to what, F21, okay. तो बस इस वेक्टर फॉर्म में आप इतना याद रखो, ये ब्रैकेट है याद रखो, कैसे पॉइंट करना है, ठीक है। बाकी तो ये कुछ पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट इज दिस वेक्टर फॉर्म इज ओवर। नाउ we will solve one simple numerical, okay. Otherwise what I will do, I will take the difference between, okay, so write it down here, difference between the Coulomb's law and gravitational law, Newton's gravitational law, okay. Difference and similarities, you can say difference and similarities, okay. So first I will make it what, difference, the Coulomb's law between, Coulomb's law acts between two charges. Coulomb's law acts between the what, two charges, but gravitational force acts between two masses, okay. तो ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस में लगता है और कूलम्ब फोर्स चार्जेस के ऊपर लगता है, ठीक है। सेकेंड वन, ओके, सो दैट इज डिफरेंस, ओके। सो नेक्स्ट वन, ग्रेविटेशनल फोर्स is always attractive in nature,
मतलब उसमें दो मासेस है तो उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन ही होता है, ठीक है। बट कूलम फोर्स, यू कैन से कूलम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। सो कूलम फोर्स can be attractive if opposite charges are there, and repulsive if similar charges are there, okay। इसमें attraction भी होता है, repulsion भी होता है, ठीक है। and then third difference is what, gravitational force does not depend medium between the two masses, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये मान लो दो मासेस है, ये दो मासेस है, अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किधर क्या होगा, F इज इक्वल टू व्हाट, G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, एंड r इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। नाउ अगर इसके बीच में अगर मैं मीडियम चेंज कर दूँ, मतलब हवा के बजाय मैं इन दोनों मासेस को पानी में लेके जाऊँ, या फिर चांद पे लेके जाऊँ, या फिर मून, यू कैन से मार्स और द सैटर्न, एनीवेयर इफ यू टेक दिस टू मासेस and if you place at the same distance, the gravitational force will not change. That means what, the medium between these two masses, मतलब इनके बीच में जो मीडियम है, इस मीडियम के चेंज होने से इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चेंज नहीं होता है, ओके। सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ओके। हाँ, बट द कूलम फोर्स कूलम फोर्स क्या है, डिपेंड्स the medium between the two charges, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे मतलब एयर है तो फोर्स F होगा, ठीक है, मान लो, ठीक है। अगर मैंने एयर के बदले वाटर डाल दिया, ऑयल डाल दिया, जो भी है, फिर प्लास्टिक, जो भी मीडियम है, यहाँ पे ग्लास रख दिया या फिर कुछ भी है, अगर आपने इन दोनों के बीच में मीडियम चेंज किया तो F चेंज होगा, ओके। हाँ, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, दो मासेस के बीच में आप मीडियम कुछ भी चेंज कर दो, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट चेंज, इट विल बी रिमेन सेम। बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द कूलम फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इनके बीच में जो मीडियम है उसके ऊपर फोर्स डिपेंड होता है। मीडियम चेंज करो, फोर्स अलग हो जाता है, ओके। और हमेशा याद रखो, दो चार्जेस के बीच में अगर हमने मीडियम रख दिया तो फोर्स हमेशा कम ही होता है, फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, याद रखो। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन द व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द कूलम फोर्स। नाउ व्हाट आर द सिमिलरिटीज, ओके। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिमिलरिटीज, okay, what similarities between the what, gravitational force and the Coulomb force, okay। So first, both are fundamental forces, first year में सीखा आपने, okay। So both are what, fundamental forces, second, okay, both are fundamental forces, okay। both are central forces, ओके। इसका मतलब क्या है, दोनों भी सेंटर टू सेंटर एक्ट करते हैं। जैसे ये मान लो मास m1 है और ये मान लो मास m2 है, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो सेंटर टू सेंटर ही एक्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये चार्ज q1 है, ये चार्ज q2 है, इन दोनों के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव हो, रिपल्सिव हो, वो हमेशा सेंटर टू सेंटर ही एक्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग, ओके। देन थर्ड यू हैव both are conservative force, ओके। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, वर्क डन, ठीक है। अगर मास यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जा रहे हो, चार्ज यहाँ से लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हो, तो वर्क डन जो भी होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ओके। मतलब ये चार्ज यहाँ से इस तरफ लेके जा रहे हो, ऐसे लेके जा सकते हैं, ऐसे लेके जा सकते हैं, ऐसे लेके जा सकते हो, ठीक है। मास सिमिलरली मास, बट वर्क डन विल बी ऑलवेज सेम, ओके। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, अ कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। देन फोर्थ इज व्हाट, you can say both are fundamental, and then both obey inverse square law,
स्क्वायर लॉ, ठीक है। अगर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा होगा एफ जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। दोनों में 1/r स्क्वायर है, इसमें भी 1/r स्क्वायर है। ओके, सो दीज आर द व्हाट सम सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द कूलम्ब फोर्स। ओके, सो नेक्स्ट इज okay, so next I will solve or okay, after that, okay, so force, you can say electrostatic force or coulomb force, electrostatic force between two charges, between what, two charges in medium, इन यू कैन से मीडियम, ठीक है। हमने देखा है कि एयर में या फिर वैक्यूम में अगर दो चार्जेस है तो उनके ऊपर फोर्स कितना लगता है, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से यू विल गेट द व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, करेक्ट। ओके, नाउ हियर एप्सिलॉन नॉट इज फॉर द व्हाट, वैक्यूम, एंड इट इज नोन एज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एंड फ्री स्पेस मीन्स व्हाट, अ वैक्यूम, एंड इट हैज अ वैल्यू दिस मच, एंड फॉर ओके, सो एयर इज आल्सो द सेम वैल्यू, नाउ suppose the two charges, one, okay, case 1 I will mention here, case 1, suppose these two charges are placed, so I will make it here Q1 and this is a Q2, okay, and both are separated at a distance of R. Okay, now the medium between them, so medium between them is a vacuum. ओके, अगर मीडियम वैक्यूम है तो फोर्स वैक्यूम में होगा, सो एफ वी इज नथिंग बट फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इन वैक्यूम एफ वी। ओके, सो इट इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो एप्सिलॉन नॉट होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके, और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ओके, एंड देन मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, सो दिस इज व्हाट इक्वेशन 1, ओके। सिमिलरली केस 2, अब दो सेम चार्जेस को, ठीक है, ये मान लो Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, सिमिलरली सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ R। हाँ, लेकिन अब जो ये मीडियम है, ये मीडियम मैंने कुछ भी रख दिया है, ठीक है, तो एक मीडियम रख दिया मैंने, मे बी ग्लास, वाटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो EM लिख दूंगा मैं, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम, एंड दिस इज व्हाट, ये जो मीडियम है ना उसका कुछ तो वैल्यू रहेगा, उसकी कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू रहती है, जैसे इसके लिए 8.85 10⁻⁻12 होती है, तो वैसे ही जो भी जितने भी मीडियम्स है, ग्लास, प्लास्टिक, जो भी है, वाटर, एयर, केरोसिन, ठीक है, जैसे बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, हर एक मीडियम की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है, ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे EM, करेक्ट। ओके, नाउ दिस इक्वेशन, नाउ द फोर्स बिटवीन the two charges in medium, that medium is 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m आएगा, क्योंकि उस मीडियम का वैल्यू लेना है, करेक्ट। सो मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं कि अगर दो चार्जेस के बीच में अगर मीडियम चेंज किया तो उनके बीच में फोर्स कितना चेंज होगा, ठीक है, कम होता है, ज़्यादा होता है, बढ़ता है, क्या देखना है, ठीक है। सो नाउ मेक दिस इक्वेशन नंबर, यू कैन से 2, ओके। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड डिवाइड बाय राइट हैंड साइड, सो एफ वी डिवाइडेड बाय एफ एम इज इक्वल टू व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, एंड द होल डिवाइड बाय सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन m आएगा, मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, करेक्ट। ओके, सो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर कैंसिल आउट, 1/4 पाई कैंसिल आउट, ओके। सो व्हाट इज लेफ्ट, ओनली 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1/एप्सिलॉन m, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, EM डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। नाउ therefore force in a vacuum divided by force in the medium is equal to what, EM divided by E नॉट, ओके। और ये जो रेशो है इसको हम K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल K, ठीक है। ये K और ये जो वैल्यू है इसको भी हम K से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये K और ये K में कन्फ्यूज मत हो जाए, ये K अलग ही है, या फिर आपको कन्फ्यूज हो रहा है तो इसको हम ER से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ER is equal to what, EM divided by E नॉट, okay। So now
देयरफॉर एफ वी डिवाइड बाय एफ एम इज इक्वल टू व्हाट, ई आर, या फिर इसको हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देयरफॉर फोर्स इन द मीडियम, तो ये फोर्स इन द मीडियम निकालना है हमें, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ द वैक्यूम तो उतना ही रहता है, ठीक है। फोर्स इन द मीडियम इस तरफ ले लो, तो फोर्स इन द मीडियम इज नथिंग बट फोर्स इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय के, या फिर एफ वी डिवाइडेड बाय ई आर, ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, नाउ इसका मतलब क्या है, देखो फोर्स इन द मीडियम, जो फोर्स वैक्यूम में है, ठीक है, अगर मान लो फोर्स वैक्यूम में है एक, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग ई आर की बात करेंगे, ठीक है। तो ई आर क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट ई एम डिवाइड बाय ई नॉट, ओके। सो ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, और ये क्या होता है, वैक्यूम के लिए होता है, और फ्री स्पेस, और ये क्या होता है, मीडियम के लिए होता है, ठीक है। तो इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर दैट मीडियम, ओके। नाउ हाउ टू डिफाइन दिस, तो उसके नाम है रिलेटिव परमेबिलिटी, ओके, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, याद रखो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ई आर, और या फिर के को, ई आर के दोनों सेम ही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। सो डेफिनेशन, उसका डेफिनेशन कैसे होगा, डेफिनेशन, हाउ टू डिफाइन दिस रिलेटिव परमेबिलिटी, इट इज द रेशो, ये रेशो है ना, रेशो ऑफ द व्हाट, इट इज द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये रेशो है ना, ओके। ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। और इसकी बहुत सारी मीडियम्स है, तो ये क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अच्छा, यूनिटलेस क्वांटिटी क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन एम मीडियम, उसकी परमिटिविटी जो उसका यूनिट है और इसका यूनिट है, दोनों का सेम ही है, ठीक है। जैसे मीटर कैंसिल हो जाएगा, एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, केजी कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे ये रेशो है ना, और दोनों का मीनिंग सेम ही है और दोनों का यूनिट सेम ही है, सो दैट्स वाई इट इज़ व्हाट, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो इसका जो डायमेंशन आएगा M0, L0, T0 सब कुछ 0 आएगा, ठीक है। सो नाउ if you consider there are some examples for air k is equal to 1 है, for air k is equal to 1, soil, ठीक है, k is equal to almost 5 है, ठीक है। ice के लिए k is equal to 5 है, उसके लिए भी, ठीक है। water देखो, water के लिए k is equal to 80 है, और PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पीवीसी पाइप रहती है ना, उसके लिए ऑलमोस्ट 3 होता है के की वैल्यू, ठीक है। तो ये के की वैल्यू देखो, सिंपल जस्ट नंबर है, इसके साथ यूनिट नहीं है, बिकॉज इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट जस्ट अ नंबर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो, ठीक है, इफ़ यू कंसिडर द 2 चार्जेस, ओके। सो एग्जाम्पल, उसका मतलब बताता हूँ मैं, ठीक है। सो ये मान लो Q1 है, एक 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, और ये Q2 है, ये 1 कूलम चार्ज, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर, हम लोग मान लेंगे कि 1 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब अगर मीडियम वैक्यूम है तो फोर्स कितना लगेगा, एफ वी इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ वी इज इक्वल टू व्हाट, ओके, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 1 × 1 डिवाइड बाय व्हाट, 1 स्क्वायर, क्योंकि मीटर सब मैंने 1 लिया है, ठीक है, फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पस। तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर फोर्स इन द वैक्यूम इज 9 × 10⁹ न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। अब सेकेंड, मान लो ये 2 चार्जेस मैंने मीडियम में रख दिया, ठीक है, ये मैक्सिमम फोर्स है। 2 चार्जेस के बीच में फोर्स कब लगता है, जब उनके बीच में मीडियम वैक्यूम हो। अगर मीडियम चेंज किया तो फोर्स कम होता है, ठीक है। कितना कम होगा के टाइम्स उस मीडियम का के, ठीक है। तो जैसे मान लो मीडियम, मैंने वाटर रख दिया, उस वाटर की वैल्यू क्या है,
के की वैल्यू 80 है, ठीक है। सो हाँ, के की वैल्यू 80 है ना, ठीक है। तो फोर्स इन द मीडियम क्या होता है, फोर्स इन द वैक्यूम डिवाइड बाय के होता है, ठीक है। सो यहाँ पे फोर्स इन द मीडियम क्या है, वाटर है। सो फोर्स इन दैट मीडियम इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इन द वैक्यूम डिवाइड बाय के ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। ओके, फोर्स इन द वैक्यूम कितना है, 9 इंटू 10⁻9 होल डिवाइडेड बाय व्हाट, 80 होल डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। सो फोर्स इन द मीडियम 9 डिवाइड बाय 80 करो, ओके। सो इफ आई डू दिस 9 डिवाइडेड बाय 80 you will get 0.1125 into 10⁻9 into 10⁻9, okay। Now make it in decimal point, so f mean the medium, okay, so it becomes what, यहाँ से एक जीरो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1.125 10⁸ न्यूटन, ठीक है। नाउ इफ़ यू कंसिडर द वैक्यूम एंड द मीडियम, यहाँ पे देखो फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्स कम है, ठीक है। तो जब भी आप मीडियम चेंज करते हो तो फोर्स क्या होता है, के टाइम्स कम हो जाता है, के टाइम्स क्या होगा, कम होगा, ओके। जैसे मान लो अगर मैंने मीडियम कौन सा ले लिया, इफ आई टेक दिस मीडियम एज आइस, ठीक है, आइस लूँगा, ठीक है। तो फोर्स इन आइस इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय के ऑफ आइस करना है सिर्फ आपको, ठीक है। तो फोर्स इन द वैक्यूम क्या है, 9 इंटू 10⁻9 और के की वैल्यू क्या है, आइस की 5 है। सो फोर्स इन आइस बिटवीन द सेम टू चार्जेस it is 9 divided by 5, it is 9 divided by 5, you will get 1.8 into 10⁻9 न्यूटन, 9 न्यूटन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग, ओके। तो जब भी मीडियम याद रखो, जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इफ यू इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन द टू चार्जेस, द फोर्स विल गेट डिक्रीजेस टू दैट ऑफ द व्हाट, वैक्यूम के साथ ही कंपेयर करना है। सो वैक्यूम में फोर्स हमेशा मैक्सिमम रहता है दो चार्जेस के बीच में। जैसे ही आपने मीडियम दूसरा डाला तो उसका बस के डिवाइड कर दो वैक्यूम के फोर्स के साथ, यू विल गेट द व्हाट, द न्यू फोर्स इन दैट पर्टिकुलर थिंग्स, ओके। सो दिस आर द व्हाट, द सम एक्सप्लेनेशन फॉर द व्हाट, ओके। तो बस ये याद रखो कि फोर्स इन द मीडियम इज नथिंग बट द फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय व्हाट, के ऑफ दैट मीडियम। कौन सा मीडियम इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये डिवीजन ही हो रहा है ना, तो डिवीजन होने के बाद वैल्यूज कम होती है, वैल्यूज क्या होती है, कम होती है, ओके। सो रिमेंबर, ओके। सो आई विल राइट इट डाउन हियर, ओके। कभी एक मार्क्स के लिए पूछते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस decreases when dielectric medium is inserted between two charges, ओके। सो हमेशा याद रखो, एक मार्क्स के लिए पूछते हैं, ओके। सो देन नेक्स्ट इज, ओके, so everything is now covered, okay। So now we will solve this numerical. Now here we are going to solve one simple numerical which is based on the what, the Coulomb's law, okay। So just pause the video and read it, okay। So I will also start to solve this, okay, but you can just pause the video and write it down and first try yourself, okay, and then after that you can see this solution also, okay। So now the electrostatic force on the small sphere, okay, of charge, there is one small sphere, or you can say charge 1, that is how much, 0.4 microcoulomb, due to the another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन, ओके। सो इसका मतलब क्या है, ये दो चार्जेस है, एक दोनों स्मॉल स्फीयर है, एक के ऊपर -0.4 माइक्रोकूलम है और दूसरे के ऊपर -0.8 माइक्रोकूलम है, ओके। दैट मीन्स व्हाट, बोथ विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर, ओके। तो इनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स दिया है, दैट F इज गिवन। सो फर्स्ट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, आपको R फाइंड आउट करना है, ओके। एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर, ओके। जैसे मान लो ये अभी जो फोर्स है ये, ठीक है, ये फोर्स इसकी वजह से इसके ऊपर है, ठीक है, हाँ। तो इसकी वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स होगा ये भी पूछा है, ठीक है। और हमें पता है कि दोनों फोर्स क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, ये इस पे लगा या फिर ये इस पे लगा है, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, करेक्ट, ओके। लेकिन फिर भी हमें कैलकुलेट करना है, ओके। सो फर्स्ट आई विल ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट वन, ए, ओके। सो द थिंग्स आर गिवन हियर। सो Q1 इज इक्वल टू व्हाट, 0.4 माइक्रोकूलम, दैट इज 0.4 into 10⁻⁻6 coulomb, okay। Micro means what, 10⁻⁻6, okay। And then Q2 is equal to what, 0.8 microcoulomb, and that is negative, okay, negative, that is 0.8 into 10⁻⁻6 coulomb,
ओके। हाँ, जब भी हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो आप साइन लिया या नहीं लिया तो भी चलेगा, ठीक है। सो जिस साइन इज ओनली रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हाँ, तो बस फाइनली क्या हो सकता है कि आपका फोर्स या तो पॉजिटिव आ गया तो वो रिपल्सिव होगा, नेगेटिव आया तो वो अट्रैक्टिव होगा, बस उतना ही पता था। इसका मतलब ये नहीं कि वो कम फोर्स है ज़्यादा फोर्स है, नहीं। नेगेटिव ओनली टेल्स यू व्हाट वेदर इट इज अट्रैक्टिव और वेदर इट इज रिपल्सिव, ओके। सो नाउ this one, okay. So the next is okay, so I will use this equation. So r you have to find out, okay. So this one, use this equation. F is equal to what, 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by what, r square, okay. Now F is given, force is given, so I will write it down here. F is 0.2 Newton is given, okay. So it becomes what, 0.2 is equal to what, okay. What is the value of this, 9 into 10 to the power of 9 into q1 q2, okay. q1 is how much, 0.4 into 10 to the power of -6 into q2 is 0.8 into 10 to the power of -6, okay. इसका नेगेटिव साइन नहीं लिया तो भी चलेगा क्योंकि हम लोग r फाइंड आउट कर रहे हैं एंड r इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर आपने ये माइनस लिया तो r नेगेटिव में आएगा, तो r नेगेटिव में कभी होता नहीं, करेक्ट, ओके। सो इट बिकम्स व्हाट, r स्क्वायर, ओके। सो हियर नाउ शिफ्ट दिस r ओवर हियर, ओके। तो ये कम्प्लीटली r क्या करूँगा मैं, r स्क्वायर करूँगा, ये r स्क्वायर इस तरफ ले लो तो ये क्या होगा 9, ओके। तो ये सारा मल्टीप्लाई कर दो, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ओके। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 9 multiplied by 0.4 multiplied by 0.8, okay. So you will get around 2.88 into 10 to the power of, okay. So plus 9 और ये -6, so plus 9 और -6 -12 होता है and whole divided by 0.2, okay. So r square, okay. Now 2.88 divided by what, 0.2, okay. So this divided by 0.2 you will get 14.4 into 10 to the power of, okay, plus 9 and -12 you will get -3, okay. So r square is equal to what, I will make it here 144 into 10 to the power of -4, ये भी लिख सकता हूँ मैं, बराबर, okay. Because I want to convert into whole number, either you make it -2 or I will make it what, -4, okay. So this is also correct. Now r is equal to what, under root of 144 into 10 to the power of -4, okay. Now what is the square root of this one, 144, okay. So you can make it 144 square root, 144 square root is 12, okay. So r is equal to what, 12 into 10 to the power of, what is the square root of -4, you have to make it what, only half, okay. So -2, so this is what the answer, okay, in meter. So in centimeter r is equal to what, 12 centimeter, r is equal to what, 12 centimeter, okay. Now second is what is the force on the second charge, okay. So force due to this charge on this charge and due to this charge on this charge, both the forces are equal because the equation will be the same, okay. अगर आप ये फोर्स ड्यू टू वन चार्ज और सेकंड चार्ज पे निकालना चाहते हैं तो F इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 करना पड़ेगा डिवाइड बाय r स्क्वायर, ओके. सिमिलरली व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज ऑन द फर्स्ट चार्ज, इक्वेशन तो वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो इक्वेशन सारा वही है. सो सिमिलरली दैट मीन्स व्हाट, द force on second sphere, due to the first sphere is also same, that means F is equal to what, 0.2 Newton, वो भी सेम ही होगा, करेक्ट, ओके. So this is the numericals, okay. So such a numericals will be asked in your examination, okay. Now I will try some another any numericals there, okay. So there is a one numerical, okay. So I will just write it down here, okay. It is MCQ type, okay. So the ratio, you can say the ratio of the forces
between two small sphere with constant charge A in constant charge A, okay, in air, ठीक है, in air, and B in medium of dielectric constant K is, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखता हूँ, इट इज़ 1:k, बी ऑप्शन है k:1, सी ऑप्शन है 1:k², एंड डी ऑप्शन है k²:1, ठीक है। तो पूछा क्या है, ठीक है, जैसे द रेशो मतलब डिवीजन वाला, रेशो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन द टू स्मॉल स्पीयर व्हेन द टू स्मॉल स्पीयर विद अ कांस्टेंट चार्ज, मतलब सेम चार्ज है, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द एयर एंड व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। सो जैसे हमें क्या निकालना है, फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन दैट मीडियम, ठीक है, इनका रेशो क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि फोर्स इन एयर इज इक्वल टू व्हाट, दैट मीन्स, ओके, इट इज 1/4πε0 q1 q2 डिवाइड बाय व्हाट, r², q1 q2 डिवाइड बाय r², ओके, और होल डिवाइड बाय फोर्स इन दैट मीडियम, वी नो दैट 1/4πε0m, ओके, उस मीडियम होगा, और q1 q2 बाय r², ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, em डिवाइड बाय ई नॉट आता है, em डिवाइड बाय ई नॉट, क्योंकि ये कैंसिल होता है, 1/ε0, 1/em इज लेफ्ट, ओके। और इसका मतलब क्या होता है, k होता है, इसका मतलब क्या होता है, k होता है, करेक्ट, ओके। सो अच्छा, k इसको मैं कैसे लिखता हूँ, k/1 लिख सकता हूँ ना। सो फोर्स इन एयर डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, एक्चुअली क्या होता है, k/1 होता है ना, और k/1 क्या होता है, k:1 होता है, करेक्ट, ओके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। या फिर इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय के, करेक्ट, ओके। तो फोर्स इन वैक्यूम या फिर एयर में, यानी फोर्स इन मीडियम, तो ये फोर्स इन वैक्यूम ऐसे रहेगा, ये मीडियम इस तरफ जाएगा, ये के इस तरफ आएगा, तो के क्या होता है, k:1 ही होता है ना, करेक्ट, ओके। सो दिस इज द आंसर, ओके। सो सच न्यूमेरिकल्स यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से क्या होगा, आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट एक समझ में आएगा, ठीक है। और ऐसे थोड़े बहुत MCQs वगैरह ट्राई करते रहो, यू हैव द प्लेंटी सोर्सेस आर अवेलेबल, बहुत सारे बुक्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और एक बात रिगार्डिंग द नोट्स, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर नोट्स के बारे में, देखो पहले तो अपनी थ्योरी कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। नोट्स तो आपको यहाँ वहाँ से बहुत मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट द नोट्स। मेरे पास भी मेरे खुद के नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में दे दूँगा, तो PDF अपलोड करके जो भी है जैसे बनता है वैसे मैं दे दूंगा, लेकिन वो नोट्स तो है ही, ठीक है। तो इससे अच्छा आप क्या करो, जब भी ऐसे वीडियोस वगैरह देखते रहते हो ना, तो खुद के वो नोट्स बनाओ, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे वो खुद राइट करो, ठीक तरह से समझो, ठीक है। एक बार अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है ना, किसी नोट्स वोट्स की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो नोट्स वोट्स तो आपको मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन उसके चक्कर में मत रहो, जितना ये यहाँ पे पढ़ा रहो ना, दैट इज़ सफिशिएंट टू क्रैक द व्हाट एनी एग्जाम, CET हो, नीट हो, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, आप कौन सी भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट द नोट्स, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होना, तो कंसेप्ट एक बार क्लियर होना, तो आपको आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आए, यू आर एबल टू सॉल्व, ठीक है। तो वही बात होगी ना, ठीक है। तो नोट्स की क्या ज़रूरत है, ठीक है, नोट्स की क्यों ज़रूरत होती है, तो जस्ट रिवीजन पर्पस, ओके। तो नोट्स तो मेरे पास है, आपको बाद में दे दूंगा मैं, बट अभी तो फर्स्ट टॉपिक शुरू है ना, अभी से आप नोट्स की मांग करने लगे तो फिर इट इज़ नो यूज़, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ख़त्म तो होने दो थोड़ा सा, और इसके ही नोट्स बनाओ ना, यही नोट्स है और क्या है। नोट्स मतलब क्या होता है, जो मैं सिखा रहा हूँ यही तो नोट्स है, करेक्ट, ओके। सो नाउ दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। नाउ वी विल सॉल्व the many more lectures, okay, or many more examples
क्योंकि अभी सुपरपोजिशन वगैरह आने वाला है, थोड़ा सा वो टफ पार्ट है, तो वहाँ पे आपको वेक्टर्स आना चाहिए। अब यहाँ से वेक्टर शुरुआत होगा। यहाँ पे सिर्फ हम 2 चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, 3 4 5 4 ऐसे बहुत सारे चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे लगता है, तब वेक्टर्स की ज़रूरत होती है। करेक्ट, ओके। तो वो बात अभी थोड़ा सा रिवाइज करो, ओके। और एक बात, जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मान लो यहाँ पे ग्लास रॉड है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्लास रॉड है। अगर इस ग्लास रॉड को मैंने अगर सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास रॉड पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक सीरीज़ होती है, और ये बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके उन लोगों ने ये सीरीज़ बनाई है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ, तो एक सीरीज़ है, ठीक है। तो ग्लास रॉड इस सीरीज़ में पहले आता है और सिल्क बाद में आता है। तो ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। हाँ, अगर ग्लास को नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ग्लास के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स है, तो सीलिंग वैक्स है, फ्लैनेल है, फर है, इसके साथ रब किया ना तो ग्लास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ग्लास को अगर सिल्क के साथ किया तो पॉजिटिवली चार्ज, ग्लास को अगर फर, फ्लैनेल या फिर सीलिंग वैक्स के साथ किया तो नेगेटिवली चार्ज आता है। तो इसका मतलब ये जितने भी बॉडीज़ है, जैसे मान लो यू कैन से आई विल टेक द okay, so human body, okay, if the human body is rubbed with what, sulfur, okay, then human body becomes positively charged and sulfur becomes negatively charged, okay. And the human body, same human body, if you rub with what, cotton, okay, automatically the human body becomes negatively charged and then cotton becomes positively charged. तो ये डिपेंड रहता है सीरीज़ पे, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो कौन सा पॉजिटिव या फिर कौन सा नेगेटिव, ऐसा हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये सीरीज़ होती है, इस सीरीज़ पे डिपेंड होता है कि कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। हर बार ग्लास रॉड पॉजिटिव ही नहीं बनेगा, ठीक है, वो नेगेटिव भी बन सकता है, पॉजिटिव बन सकता है, डिपेंडिंग आप किस पे रब कर रहे हो, ओके। सो now this is what all about today lecture, okay. So we will see you in the next lecture, okay. Till then, bye, thank you. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.